Hello class, welcome back. In previous video we had done exercise 2D. Now exercise 2D is based on HCF and today we will going to start exercise 2E. Now exercise 2 is based on LCM. Now what do you mean by LCM? LCM stands for lowest common multiple. LCM stands for lowest common मल्टीपल. अब इसको समझिए, अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6. LCM means lowest common multiple. Now what are the multiples of 4? That is 4, 8, 12, 16, 20 and so on up to. Clear? Similarly, what are the multiples of 6? That is 6, 12, 18, 24, 30, so on up to. LCM means lowest common multiple. नो मीन्स जो आपका मल्टीपल सबसे छोटा है एंड कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 12. सो एलसीएम ऑफ 4 and 6 is 12. Lowest but common multiple that is 12. So this is the basic definition. इसके बाद देखिए what are the methods to find LCM. Methods to find LCM. There are two methods to find LCM. First is by prime factorization and second method is by division method. Clear? These are the two methods by which you can find the LCM. अब देखिए एक्सरसाइज 2 ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 42 and 63. Question number first 42 and 63. You have to find the LCM. Now what are the prime factors of 42? Now 42 is divisible by 2. जब आप 42 को 2 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन क्या आ रहा है 21. Now 21 is divisible by 3 and 7 is divisible by 7. Now what are the prime factors of 63? 63 is divisible by 3. That is 21. Again 21 is divisible by 3. 7 is divisible by 7. Clear? So these are the prime factors of 42 and 63. 42 के prime factors क्या आ रहे हैं आपके पास 2 into 3 into 7 and 63 के prime factors क्या आ रहे हैं 3 into 3 into 7. Now अब आप LCM कैसे निकालोगे? What do you mean by the LCM? LCM में आप क्या करते हो? प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर. इसमें देखिए ऑल डिफरेंट कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं दैट इज 2, 3 and 7. क्लियर? मीन्स आपको क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर. दीज आर द डिफरेंट प्राइम फैक्टर दैट इज 2, 3 and 7 एंड यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. आपको क्या देखनी है ग्रेटेस्ट पावर. ये देखिए 3 into 3. 3 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 टाइम्स मीन्स 3 raised to the power 2 into 7. क्लियर? अब इसको समझिए when a number is multiplied by itself. when a number is multiplied by itself उसको आप क्या बोलते हो स्केयर ऑफ दैट नंबर और यू से a raised to the power 2. क्लियर? if there is a raised to the power 3 means you have to multiply a 3 times that is a into a into a. A raised to the power 2 means you have to multiply a 2 times that is a into a. Clear? So that's why 3 into 3 we have written 3 raised to the power 2. Easy है. LCM में आपको क्या देखना है product of all different prime factors using the greatest power of each common prime factor. अब 3 की greatest power क्या है 2. So LCM में क्या आएगी 3 की power 2. And so this is the
एलसीएम। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, that is 126. So LCM of 42 and 63 is 126. LCM में आपको क्या देखना, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और आपको कंसीडर क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, फाइंड एलसीएम ऑफ 12, 18 and 20. Now what are the prime factors of 12? 12 is divisible by 2. Again 6 is divisible by 2. Now 3 is divisible by 3. So these are the prime factors of 12. Now what are the prime factors of 18? 18 is divisible by 2. Now 9 is divisible by 3. 3 is divisible by 3. Again 20 is divisible by 2. Again 10 is divisible by 2. 5 is divisible by 5. So these are the prime factors of 12, 18 and 20. 2 into 2 into 3. 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या आपके पास, 2 into 3 into 3. 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या आपके पास, 2 into 2 into 5. अब देखिए 2 into 2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 raised to the power 2, क्लियर, into 3. नाउ 2 into 3 into 3, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 into 3 raised to the power 2. 3 raised to power 2 means you have to multiply 3 2 times, that is 3 into 3. Now again 2 into 2, that is 2 raised to the power 2 into 5. Now LCM is product of all different prime factors, that is 2, 3 and 5. 2, 3 and 5, these are the all different prime factors. आपको क्या कंसीडर करना है, ग्रेटेस्ट पावर. सो 2 raised to power 2 into 3 raised to power 2 into 5. So LCM is 2 into 2, that is 4, into 3 into 3, that is 9 into 5. So 36 into 5, that is 180. So LCM is 180. HCF में आप क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और LCM में आप क्या देखते हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कंसीडरिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज फाइंड द LCM, that is 36, 60, 72. Now we are doing with the method that is long division method, by division method. Division method is very easy. Write all the three numbers, that is 36, 60 and 72. Now see, all are even numbers, means all numbers are divisible by 2. जब आपने सबको 2 से डिवाइड किया क्या आ रहा है, that is 18. जब 60 को 2 से डिवाइड किया that is 30. जब 72 को 2 से डिवाइड किया that is 36. क्लियर. अगेन यू कैन डिवाइड बाय 2. 18 को जब डिवाइड किया that is 9. 30 को जब 2 से डिवाइड किया that is 15. 36 को जब 2 से डिवाइड किया that is 18. इजी है. नाउ सी, नाउ देयर इज 18. सो आप 18 को 2 से डिवाइड कर सकते हो. नाउ यू कैन नॉट डिवाइड 9 by 2, सो 9 एज इट इज. यू कैन नॉट डिवाइड 15 by 2, सो 15 एज इट इज. नो, जब आपने 18 को 2 से डिवाइड किया दैट इज 9. इजी है. ये देखिए, नाउ 9, 15, 9, ऑल द थ्री नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. जब आपने 9 को 3 से डिवाइड किया दैट इज 3. 15 को 3 से डिवाइड किया दैट इज 5. 9 को 3 से डिवाइड किया दैट इज 3. क्लियर. नो 3, 5, 3 डिविजिबल बाय 3. जब आपने 3 को 3 से डिवाइड किया दैट इज 1.
5 को आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो 5 एज इट इज, जब आपने 3 को 3 से डिवाइड किया दैट इज 1. नाउ 5 इज डिविजिबल बाय 5. सो आपका एलसीएम अब क्या आएगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. so this is the आंसर. जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 360. लॉन्ग डिवीजन मेथड इज वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 5 by long division method. Rest questions, that is question number 6th to question number 9th, please omit. Clear? Now see question number 10th. Question number 10th is find the HCF and the LCM. Find HCF and the LCM. First part is 117 and 221. We will do with the method of prime factorization. No. 117 is divisible by 3. जो आपने 3 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आ रहा है, दैट इज 39. 39 is again divisible by 3. Now 13 is divisible by 13. So these are the prime factors of 117. Now what are the prime factors of 221? Now 221 is not divisible by 2, 3, 5, 7 and 11. So this number is divisible by 13. 17, no, 17 is divisible by 17. So prime factors of 117 is 3 into 3 into 13 and 221 के prime factors के आपके पास 13 into 17. Now HCF हमने क्या किया था, मीन्स जो prime factor आपके common है, only consider that factor, that is 13 only. So HCF is 13. Clear? और एलसीएम में आप क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और आप क्या कंसीडर करते थे, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर. 3 into 3 दैट इज 3 रेज टू द पावर 2 into 13, ऐसे लिख सकते हो. नो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर, दैट इज 3 into 13 into 17, और आपको कंसीडर क्या करना है, ग्रेटेस्ट पावर. सो 3 रेज टू द पावर 2. इजी. अब दैट विल बिकम 9 into 13 into 17, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा है, 1989 इज द आंसर. सो एलसीएम आपका क्या आ रहा है, 1989. HCF में आप क्या देखते हो, जस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और उनको क्या करते हो, प्रोडक्ट. LCM में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कंसीडर द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर. क्वेश्चन नंबर 11 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या गिवन है, 693 एंड 1078. यू हैव टू फाइंड द HCF and the LCM. Now what are the prime factors of 693? This number is divisible by 3, that is 2, 3, 1. Again 231 is divisible by 3. जब आपको 3 से आपने डिवाइड किया, क्या आपके पास 77. Now 77 is divisible by 7. 11 is divisible by 11. Now second number is 1078. Now this number is divisible by 2, that is 5, 3, 9. Now 539 is divisible by 7. जब आपने 7 से डिवाइड किया, आपका क्वेश्चन क्या है, 77. अगेन 77 is divisible by 7. No, 11 is divisible by 11. So these are the prime factors of 693 and 1078. That is 3 into 3 into 7 into 11. 1078 के प्राइम फैक्टर्स के आपके पास 2 into 7 into 7 into 11.
नाउ व्हाट इज द HCF? HCF मींस दोनों में कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, ये देखिए 7 is common and 11 is common. So HCF is 7 into 11, that is 77. HCF में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट ऑफ ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर्स, क्लियर। एंड LCM में आप क्या करते हो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कंसीडरिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर। नाउ सी 3 into 3 इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 raised to the power 2 into 7 into 11। नाउ 7 into 7 इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7 raised to the power 2 into 11। नाउ व्हाट इज द LCM? Product of all different prime factor, that is 3 into 2 into 7 into 11। आपको कंसीडर क्या करने, ग्रेटेस्ट पावर। सो 3 raised to the power 2, 7 raised to the power 2। इजी। अब ये देखिए 3 raised to the power 2 means you have to multiply 3 2 times 3 into 3, that is 9 into 2 into 49 into 11। जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 9702। सो दिस इज द LCM। इजी है। क्वेश्चन नंबर 13 था, होमवर्क के लिए ट्राई करना। एंड ओमिट क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले देयर इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। अगर आपके पास दो नंबर है 4 एंड 6, क्लियर। नाउ व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4? अगर मैं 4 के प्राइम फैक्टर्स करता हूं 2 1, एंड व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6? 6 is divisible by 2, 3 is divisible by 3। सो 4 के प्राइम फैक्टर्स के आपके पास 2 इंटू 2 एंड 6 के प्राइम फैक्टर्स के आपके पास 2 इंटू 3। जस्ट वेट, 2 into 3। Now, what is the HCF of 4 and 6? HCF means common factor, that is 2। Clear? Now, what do you mean by LCM? अब इन दोनों का LCM क्या आएगा? LCM means product of all different prime factors considering the greatest power of the prime factor। 2 into 2 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 raised to the power 2। क्लियर। सो आपका LCM क्या आएगा? 2 raised to the power 2 into 3, बिकॉज देयर आर ओनली 2 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 2 raised to the power 2, दैट इज 4, 4 into 3, दैट इज 12। सो LCM आपके पास क्या आ रहा है? 12। अब देखिए अगर मैं HCF इंटू LCM करता हूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 2 into 12, that is 24, because HCF is 2 and LCM is 12। और इसके बाद अगर देखो मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अगर मैं जो मेरे को नंबर्स गिवन थे उनका प्रोडक्ट करता हूं, दैट इज 4 and 6, that you mean 4 into 6, that is again 24। so this is the result, that is product of two numbers is equal to product of their HCF and LCM। इजी है। मीन्स आपके पास रिजल्ट अब क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF and LCM। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, that is product of two numbers is equal to product of their HCF and LCM। now see question number 16।
Question number 16th is, for each pair of numbers verify that product of two numbers is equal to product of their HCF and LCM. ये देखिए आपको क्या करना है, वेरीफाई. वेरीफाई मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 87 एंड 145. नाउ व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 87? नाउ 87 इज डिविजिबल बाय 3. जब आपने 3 से डिवाइड किया क्या आ रहा है, 29. नाउ 29 इज डिविजिबल बाय 29. नाउ व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 145? नाउ 145 इज डिविजिबल बाय 5 and 29 is divisible by 29. Now what are the prime factors of 145? Now 145 is divisible by 5. जब आपने 5 से डिवाइड किया आपके पास क्या आएगा, 29. Now 29 is divisible by 29. So 87 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 3 into 29 and 145 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 5 into 29. Now, what is the HCF of 87 and 145? That is 29. Clear? And now, what is the LCM of 87 and 145? LCM is product of all different prime factor. That is 3 into 5 into 29. Here, greatest power is 1. और जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, दैट इज 435. आपको क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम. अगर मैं एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, दैट विल बिकम 29 इंटू 435. Now, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 12,615. क्लियर? नाउ अगर मैं दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 87 इंटू 145. और जब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरे पास क्या आ रहा है, अगेन 12,615. हेंस प्रूव्ड. आपने क्या प्रूव कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. क्लियर? इजी. अब देखिए सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या गिवन आपको, 186 एंड 403. नाउ व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 186? 186 इज डिविजिबल बाय 2. जब आपने 2 से डिवाइड किया क्वेश्चन क्या आ रहा है, 93. नाउ 93 इज डिविजिबल बाय 3. नाउ 403 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7, 11. So it is divisible by 13. That is 31 ones. Clear? Now what are the prime factors of 186? That is 2 into 3 into 31 and 403 के prime factors क्या आ रहे हैं आपके पास, 13 into 31. Now what is the HCF of 186 and 403? That is common factor 31. Now what is the LCM of 186 and 403? LCM means product of all different prime factor, that is 2 into 3 into 13 into 31. और जब आप सबकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास LCM क्या आ रहा है, that is 2418. क्लियर? आपको क्या वेरीफाई करना, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अगर मैं HCF एंड LCM का प्रोडक्ट करता हूं मेरे पास क्या आ रहा है, 31 इंटू 2418.
जब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 74,958. क्लियर? एंड जब मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो भी मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 186 इंटू 403. जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आएगा, 74,958. हेंस प्रूव्ड HCF and LCM is equal to product of two numbers. Product of two numbers. Hence verified. Clear? Now see question number 17th. Question number 17th में आपको क्या गिवन है, product of two number is this and their HCF is 12. आपको क्या निकालना है, find their LCM. अभी हमने रिजल्ट क्या किया, HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. क्लियर? और इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन है, दैट इज 2160. एंड आपको HCF गिवन है, दैट इज 12 एंड यू हैव टू फाइंड द LCM. और आप LCM कैसे निकालोगे, जब आप क्या करोगे, 2160 को किससे डिवाइड करोगे, दैट इज 12. एलसीएम आप कैसे निकालोगे, ये देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज. क्लियर? नाउ 12 आपका लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, डिवाइड. सो आपने क्या किया, एलसीएम दैट इज 2160 डिवाइड बाय 12. क्लियर? नाउ 3 पे इजिली डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 0. Now again 4 पे इजिली डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 32, 4 8 जा 32 0. सो आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, दैट इज 180. इजी. अब क्वेश्चन नंबर 18th बिल्कुल सेम है, प्लीज आप उसको होमवर्क के लिए ट्राई करना. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19th. क्वेश्चन नंबर 19th में आपको क्या गिवन है, HCF गिवन है, दैट इज 145. LCM भी आपको गिवन है, दैट इज 2175. एंड वन ऑफ द नंबर भी आपको गिवन है, दैट इज 725. आपको क्या निकालना, फाइंड द अदर नंबर. आपके पास रिजल्ट क्या होता है, HCF into LCM is equal to product of two numbers. Clear? This is the result, that is HCF into LCM is equal to product of two numbers. So अब अदर नंबर कैसे निकालोगे, ये देखिए अदर नंबर आप कैसे निकालोगे, जब आप HCF into LCM को जो आपको नंबर गिवन है उससे डिवाइड, दैट इज वन ऑफ द नंबर. क्लियर? नो HCF आपको क्या गिवन है, 145 एंड LCM आपको क्या गिवन है, 2175 डिवाइड बाय वन ऑफ द नंबर आपको क्या गिवन है, 725. क्लियर? इजिली 5 पे कटिंग हो रही है, 5 1 जा 5, 22, 5 4 जा 20, 25, 5 5 जा 25. क्लियर? नाउ 5 2 जा 10, 5 9 जा 45. क्लियर? अगेन 5 पे इजिली कटिंग हो रही है, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 17, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25. अगेन 29 से 29 कैंसल. सो अदर नंबर आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज 435. बस आपको रिजल्ट याद रखना होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM. क्वेश्चन नंबर 20th भी आप होमवर्क के लिए ट्राई करना. एंड क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 प्लीज ओमिट. ओके क्लास, थैंक यू.